بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آنگن میں ستارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار، اور میرے معاون پروڈیوسر ہیں ناصر راجپوت۔ سامعین، پروگرام آنگن میں ستارے، اس میں ہم کسی بھی کتاب یا کسی بھی تحریر کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس تحریر کو منتخب کیا ہے وہ جناب احمد ندیم قاسمی کا ایک شاہکار افسانہ کپاس کا پھول ہے۔ کپاس کا پھول یہ ایک بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی مشہور عام افسانہ ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے میں جناب احمد ندیم قاسمی کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ احمد ندیم قاسمی ایک پاکستانی شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے جو اپنی انسان دوستی، روشن خیالی اور ہمہ گیر ادبی خدمات کے لیے مشہور تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہنے والے جناب قاسمی صاحب نے 50 سے زائد کتب تصنیف کی، جن میں نظمیں، افسانے، کالم اور تنقید شامل ہیں۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز جیسے بڑے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریروں میں رومان کی فضا اور مٹی سے محبت کے حوالے ملتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مطالعہ کریں تو ان کے بیشتر افسانوں کا موضوع تقسیم وطن اور خواتین کے حوالے سے موضوعات اہم ہیں۔ جناب احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں ہمیں تقسیم کے ہولناک نتائج، تہذیب، سیاست اور معاشی پسماندگی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کی کہانیوں کے جو مجموعے ہیں بہت جو زیادہ مشہور عام ہیں، ان میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ ہنا، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، نیلا پتھر، کوہ پیما، پت جھڑ اور کپاس کا پھول نمایاں ہیں۔ چوپال، کپاس کا پھول، آنچل اور گھر سے گھر تک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ زیر تجزیہ افسانہ کپاس کا پھول سے لیا گیا، یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے، اور اسی پر انہوں نے جو افسانہ لکھا جو میرا بھی بہت پسندیدہ افسانہ ہے، اس مجموعہ کے نام ہی سے اس افسانے کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یہ 1965 کی جنگ کے پس منظر میں لکھا گیا ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ دراصل اس افسانہ میں کہانی کے اندر بھی ایک کہانی موجود ہے۔ اگر افسانے کے بنیادی موضوع کی بات کریں تو افسانے کا بنیادی موضوع جنگی فسادات میں عورتوں کی عصمت دری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ ملکوں کی لڑائی میں تذلیل ہمیشہ عورت کی ہی ہوئی ہے۔ یہی پہلو مصنف نے اجاگر کرتے ہوئے ہندوستانی فوج کے ظلم اور بربریت کو بہت عمدگی سے قاری کے سامنے بیان کیا ہے۔ افسانہ کے مطالعے کے بعد ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عورت ملک بننے سے پہلے بھی مظلوم تھی، اور آج بھی یہی پہلو افسانہ کو افاقیت بخشتا ہے۔ بغور مطالعہ سے ہمیں اس افسانہ میں مسلم ثقافت اور مذہب کا بیان بھی نظر آتا ہے، کیونکہ پورے افسانے میں مائی تاجو جو کہ افسانے کا مرکزی کردار ہے کا محبوب موضوع کفن ہے، جس پر اس نے مولوی سے خاص پاک سے کلمہ شہادت لکھوایا ہے۔
खाके पाक से कलमा शहादत लिखवाया था। दरअसल अफसाने की कहानी माई ताजो के गिर्द घूमती है। शौहर की बेवफाई के बाद उसका आखिरी सहारा उसका बेटा हसन दीन था। वो भी लड़ाई में शहीद हो गया था। दूसरा किरदार राहता का है, जो माई ताजो के पड़ोस में रहती है और उसे शाम को खाने के लिए एक रोटी दे दिया करती है। लेकिन अफसाने के इख्तिताम पर उसे हिंदुस्तानी फौज की हवस का निशाना बनना पड़ता है। इस तरह ये अफसाना अपने गिर्द तानीसियत का मौजू भी लिए हुए है। डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं कि कपास का फूल जंग के मौजू पर एक नहायत अहम अफसाना है कि इसमें जंग के बारे में तमाम जज्बाती रवैया से हटकर माई ताजो को तमाम कौम के अज़्म हिम्मत के लिए एक बलीग इस्तारा बना दिया गया है। अब तक हमने इस अफसाने के फिक्री पहलुओं पर बात की है। अब हम इसका तज्जिया फनी लिहाज से करेंगे। अगर फन के लिहाज से देखें तो किसी भी अफसाना में किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, वहदत तासर और असलूब की चाशनी अज हद जरूरी है। अहमद नदीम कासिमी को चूंकि अपने फन पर कुदरत हासिल है, लिहाजा ये तमाम लवाजमात उनके अफसानों में आला पाया के देखने को मिलते हैं। इस अफसाने के किस्से पर तो हम बात कर चुके हैं। अब इसके प्लाट पर बात करें तो कहानी का तसलसल, वहदत तासर और वाकयात का मरबूत होना उसके प्लाट की सबसे बड़ी खूबी है। अगरचे अफसाने में दो कहानियां एक साथ चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद कारी एक कहानी की वजह से दूसरी कहानी से गाफिल नहीं होने पाता। अहमद नदीम कासमी ने वाकयात को जैसे लड़ी में परो दिया है। मसलन कहानी का आगाज माई ताजो के गम से शुरू होता है और राहता उसकी गमगिसार होती है, और जब कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो सूरत बिल्कुल बदल चुकी होती है। अब राहता का सहारा माई ताजो बन गई है। इस तरह अहमद नदीम कासमी ने एक खूबसूरत तरतीब से अपने ख्यालात को सफहात पर दर्ज कर दिया है। फने अफसाना में प्लाट के बाद किरदार की बारी आती है, क्योंकि किरदारों के बगैर कोई कहानी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। किरदार अफसाने के जिस्म में रूह की हैसियत रखते हैं। किरदार जो मकालमा अदा करते हैं वो दरअसल अफसाना निगार ही के अफकारों ख्यालात का आईनादार और तर्जमान होते हैं। अहमद नदीम कासमी भी अपने किरदारों के जरिए अपने ख्यालात और उनकी नफ्सियात हम तक पहुंचाने में कुदरत रखते हैं। ये अफसाना दो किरदारों के गिर्द घूमता है। अफसाने की मरकजी किरदार माई ताजो है। माई ताजो अफसाने की एक अलमिया किरदार है। उसकी दर्द भरी तनहा जिंदगी ही अफसाने के बयानिया का अलमियाती हुस्न है। माई ताजो हमेशा अपने मरने और कफन के बारे में ही बात करती रहती थी। अफसाने का दूसरा किरदार राहता है, जो हिंदुस्तानी फौज के जुल्म का निशाना बनी। इब्तदा में ये किरदार जितना शोख और चंचल था, आखिर में अलमिया की मिसाल बन जाती है। राहता ही वो किरदार है माई ताजो जिसको अपना दुख सुख सुनाती थी। राहता माई ताजो के वजूद का हिस्सा बनकर उसकी सोच और समझ को तवानाई बख्शती नजर आती है। अगर अफसाने की मकालमा निगारी पर बात करें तो मकालमों ने किरदारों की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। हर मकालमा अपनी किरदार, हैसियत और वक्त के ऐन मुताबिक है। मसलन माई ताजो के मकालमा उसकी नफ्सियाती कैफियत की अक्कासी करते हैं। अफसाने से मिसाल मलाजा फरमाएं। मैं डरती हूँ कहीं खद्दर का कफन पहन कर जाऊं तो लोग जन्नत में भी मुझसे चक्की ही ना पसवाने लगें। इससे साबित होता है कि जिस तरह का किरदार दिखाया गया है मकालमा बिल्कुल उसके मुताबिक है। अगर मंजर नगारी की बात करें तो इससे मुराद अल्फाज के जरिए किसी मंजर की तस्वीर खींच कर कारी के सामने पेश कर देना है। मंजर कशी किसी भी अफसाने में ख़ास अहमियत की हामिल होती है। क्योंकि अहमद नदीम कासमी को अपने फ़न पर मुकम्मल अबूर हासिल है, तो उनके इस अफसाने में भी बहुत उम्दा तस्वीरें मिलती हैं जो आपने लफ्ज़ों के ज़रिए खींची हैं। इस हवाले से मिसाल मलाहजा करें। फतेह दीन की बीवी के बालियों भरे कान गायब थे। अंदर कोठों में उठा पटक मची हुई थी और बाहर राहता खौफ से फौजियों में घिरी
अपनी उम्र से 14-15 साल छोटे बच्चों की तरह चीख रही थी। फिर एक सिपाही ने उसके गिरेबान में हाथ ढालकर झटका दिया तो कुर्ता फट गया और वो नंगी हो गई। फौरन ही वो गठरी सी बनकर बैठ गई, मगर फिर एक सिपाही ने उसके कुर्ते का बाकी हिस्सा भी नोच लिया और कहे लगाता हुआ उससे अपने जूते पोंछने लगा। अहमद नदीम कासमी ने समाजी हकीकत निगारी के जरिए न सिर्फ अपने अफसानों में दही रहन सहन, तबकाती तजाद, समाज के पिसे हुए इस्तेसाली तबकात और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को मौजू बनाया, बल्कि सियासत और मजहब के ठेकेदार भी जो अपने मफाद के लिए दूसरों का इस्तेसाल करते हैं उनके कलम की जद से बच न पाए। उनके अफसाने हकीकत निगारी पर मबनी हैं। इस अफसाने की कहानी भी हमें हकीकत पर मबनी नजर आती है। असलूब के हवाले से बात करें तो किसी भी अफसाने का असलूब बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस अफसाने के मुतालिया से असलूब की जो खूबसूरत खसूसियात हमारे सामने आती हैं उसमें तशबीह और इस्तारा का इस्तेमाल खास अहमियत का हामिल है। इस हवाले से मिसाल देखें, उसे अपने लहाफ का ख्याल आया जिसकी रुई लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी। एक और जगह लिखते हैं कि चक्की पीसते पीसते हाथों की जिल्द हड्डी बन गई है। इन फिक्रात से ये बात सामने अया हो जाती है कि किस तरह अहमद नदीम कासमी ने तशबीह इस्तारा का इस्तेमाल करके अपनी बातों में वजन पैदा किया और अपनी तहरीर में जान ढाल दी है। तशबीह इस्तारा के अलावा इस अफसाने में हमें तकरार लफ्जी भी देखने को मिलती है। इससे मराद लफ्ज़ों की तकरार है जो हमें अहमद नदीम कासमी के इस अफसाने में कसरत से देखने को मिलती है। इस हवाले से हमें अफसाने में खड़ खड़, पीस पीस, बोले बोले, हल्की हल्की, घुमर घुमर, दूर दूर और बार बार वगैरह जैसे अल्फाज की तकरार देखने को मिलती है। मंदरजा वाला जिन खसूसियत का जिक्र किया गया है, इसके अलावा अहमद नदीम कासमी इस अफसाने में ताबे मुहमल का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। इस हवाले से मिसाल मलाहजा फरमाएं कि इस दुनिया में सचमुच तुम्हारा कोई नहीं है। इस जुमले में सच ताबे मुहम्मल इस्तेमाल हुआ है। मजमूई जायजा लें तो किसी अफसाने के बुनियादी तकाजे अफसानवियत, माजरा साजी और किरदार नगारी होते हैं। जो एक कामयाब अफसाने की जमानत बनते हैं वो इस अफसाने में मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि औरतों की मजलूमियत पर लिखे गए इनके अफसाने उनको अपने हम असरों से मुमताज करते हैं। अहमद नदीम कासमी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं उनके इस शेर का सहारा ले रहा हूं। जिंदगी शमा की मानद जलाता हूं नदीम, बुझता जाऊंगा मगर सुबह 9 कर जाऊंगा। बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह 9 कर जाऊंगा। दर्जा वाला तमाम बातों को देखने से मालूम होता है कि अहमद नदीम कासमी का ये अफसाना का पास का फूल एक कामयाब और मुनफरद अफसाना है। अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब की तारीख का एक ऐसा रोशन सितारा है जो रहती दुनिया तक चमकता रहेगा।